आज हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हेरिडिटरी चैप्टर डिस्कस करेंगे। हेरिडिटरी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा समझा जाए। हेरिडिटरी मीन्स होता क्या है, थोड़ा देखा जाए। हेरिडिटी हेरिडिटरी मीन्स होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस Inheritance means transfer. Inheritance means transfer of the genetical character. Genetical character. Character from parent to offspring. Parent to offspring. यानी कह सकते हैं क्या कि एक प्रोसेस है जिसमें कि जेनेटिकल करेक्टर आपका इनहेरिट करता है, ट्रांसफ़र होता है फादर से, मदर से। पेरेंटल करेक्टर आपका प्रोजेनी में आता है। मेंडल साहब ने प्रोजेनी कहा करते थे, इस टर्म को प्रोजेनी कहते थे। ऑफस्प्रिंग कह लें या कह सकते हैं इंडिविजुअल्स कह लें, न्यू सेल कह लें, डॉटर सेल्स कह लें, व्हाटसोएवर। दिन द parental character inheritance. So let us see one by one terminology. Let us understand the terminology of the genetic factors, genetical definitions. First of all, discuss about the gene. What is gene? What is gene? What is gene? What is gene? Gene is the nothing but the segment of DNA. Gene is the nothing but the segment of DNA. Segment of DNA. यानी DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है भाई? DNA है। तो DNA का एक सेगमेंट्स, एक स्टेजेज का आपका पार्ट्स होता है, जीन होता है। वेयर इज जीन लाइज? Often question arise here in the examination, where is gene located? The answer will be where is gene located? Where is gene located? Gene is present. My answer will be gene is located at the gene locus of chromosome. क्रोमोजोम के जिस स्थान पर आपका जीन लोकस होता है, उस जगह से प्रेजेंट उसको जीन कहते हैं। जीन ऑलवेज लाइज इन पेयर एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट्स बियर ओनली फैक्टर्स, ओनली allele, single alleles. Let us know about the genetic materials: chromatin, chromatid, chromosome. Let us understand one by one. Let us say one by one. Genetic material. Genetic material that may be of two type. DNA हो सकता है और दूसरा RNA हो सकता है। Most of virus, plant virus और next virus का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA का होता है। जैसे कोरोना वायरस, आज के डेट में कोरोना वायरस जो है वो RNA का बना होता है, और चूंकि उसमें म्यूटेट करने की क्षमता होती है, इसीलिए तो 17 टाइप का पाया जाता है। 70 टाइप को उसको वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है, एक्सपर्ट डॉक्टर का, एक्सपर्ट साइंटिस्ट का हमारा, इसलिए कि उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है, वो म्यूटेट करते रहता है, समय से समय म्यूटेट करते रहता है। और दूसरा हो गया DNA। तो DNA का जो सेगमेंट हो बनाएगा वो आपका जीन बनाएगा। और DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, देखो DNA हिस्टोन प्रोटीन बोथ constitute chromatin, and chromatin forms chromatid,
chromatid, and chromatid ultimately visible during the cell division, that is called chromosome. Chromosome, chromosome, shell, this one is the shell, this one is the cell, this one is the nucleus. Nucleus lies thread like a structure, that is thread like a structure known as chromatin, that is called chromatin. Chromatin. This one is a nucleolus. Nucleolus. So these are the arrangement of the genetic materials. Genetic materials may be of two types, DNA or RNA. DNA full form, what is called deoxyribo nucleic acid. Nucleic acid. RNA full form ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Allele. What is allele? Next question arises here. Allele. 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 Alternative form of gene. Alternative form of gene. Contrasting pair of gene is called allele कहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल करेक्टर हाइट, एज फॉर एग्जाम्पल हाइट, अल्टरनेटिव फॉर्म dwarfness, tallness, all these are the governed by the, all these are determined by the gene. Gene has the alternative form, sometimes it is interchangeable to gene. Okay. Oh, alternative form or contrasting pair of gene. It is represented as alphabet letter. क्या होता है? अल्फाबेट लेटर्स. That is homozygous allele. Homozygous allele का मतलब जब सिमिलर टाइप के एलील से बना होगा. जब सिमिलर टाइप के एलील बने होंगे. सिमिलर टाइप ऑफ एलील. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ए, जैसे बी, जैसे आपका सी, सो ऑन. Small letters, this one, all these are called homozygous allele. क्या होगा? Homozygous alleles. Heterozygous alleles. Heterozygous allele का मतलब ये हुआ कि डिसिमिलर टाइप का एलील्स पेयर में आते हैं. डिसिमिलर type of alleles. Dissimilar type of alleles. As for example, A, B, और इसमें क्या आ जाएगा? C. This one is the called homozygous alleles. एक दो और टर्म हम लोग देखें. फिनोटाइप. What is phenotype? पहले टर्म को समझना जरूरी होता है, नहीं तो we cannot understand the whatever the definitions, whatever the explanation given in your NCERT book. So let us first understand the term acquainted with, concerned with the hereditary. Okay. Phenotype, physical observable characters. फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब ये चीज़ होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं. मान लो कि तुम्हारे क्लास में कोई स्टूडेंट का हाइट ही मेजर करना है. कोई 4 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई 6 फीट है, तो दैट कैन बी मेजर. उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं.
उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एवरेज हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, फ्लावर का शेप हो गया, फ्लावर का पॉड का शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, ठीक है ना, हाइट हो गया प्लांट का। तो दीज आर दी एक्सप्रेस एंड कैलकुलेटेड, दैट इज वाई दी फिजिकल अपीयरेंस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है ना, ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑफ द लिविंग बींग्स, living beings, like height, color, shape, size, so on. These are the called phenotype. Genotype, next question आता है genotype. Genotype, genetical setup. It is not visible. It can be studied microscopically. Pattern of the genes, the summation of the genes of the individuals, summation of the gene pool is sum of the all the genotypes of the individuals of the populations, you can say the gene pool. So genotype, genetical setup, a genetical setup of an individual genetical setup, it is also represented by alleles. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फाबेट्स। जो जीनोटाइप होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस सिमिलर एलील्स, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप dissimilar alleles। तो जीनोटाइप्स, जेनेटिकल सेटअप, उसका जीन का अरेंजमेंट कैसे है, और जीन का पैटर्न कैसे है, होमोजाइगस में है कि हेट्रोजाइगस में है, ये दिस वन इज द टर्म। ओके, नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन आता है इस तरह का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाल। मोनोहाइब्रिड ग्रेगर मेंडल ने एक तरह से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर किए थे प्लांट ब्रीडिंग के दौरान। तो जब सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। व्हेन द ओनली सिंगल कैरेक्टर इज considered during the crossbreeding, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जांपल में शेप ऑफ सीड ले लिए, सीड ले लिए, या हाइट ले लिए, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर सेम टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। जब दो कैरेक्टर को सेम टाइम में ऑब्जर्व किया जाए तो उसी को डाईहाइब्रिड। व्हेन द टू कैरेक्टर are considered at same time during crossbreeding, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में जैसे आपका क्या हो जाएगा, पहला हाइट ले लो, हाइट एंड क्या शेप ऑफ सीड,
जब दो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इस तरह। ठीक है, तो यहां से हम लोग डाई हाइब्रिड देख लिए, फिनोटाइप देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, डोमिनेंट जीन। थोड़ा सा इसको देखें, क्या चीज, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन हम लोग क्या किसको देखेंगे, डोमिनेंट डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन उसको कहते हैं जो एक तरह से एक्सप्रेस कर ले कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर को, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेता है, उसको हम लोग डोमिनेंट जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन। कह सकते हैं क्या कि जीन विच एक्सप्रेस इट्स characters either in homozygous condition, homozygous or heterozygous condition, homozygous or heterozygous. It is always represented as capital letter. It is always represented as capital letter. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ए डोमिनेंट जीन है, बी सी, ए कैपिटल लेटर, आर टी, ठीक। होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका टी ऐसा आ गया, आर ऐसे आ गया, तो ये एक डोमिनेंट जीन हो गया, ये डोमिनेंट जीन हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, ये डोमिनेंट जीन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन, रेसेसिव जीन डोमिनेंट जीन के उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, but whenever it comes in similar allelic pairs, its own allelic pairs, it is able to express its character. तो when it is not able to, जी कह सकते हैं क्या कि जीन which does not express its character in the presence of dominant gene. But when it comes its own similar allelic pair, जब सिमिलर एलिलिक पेयर में आता है तो अपना कैरेक्टर शो कर देता है। ये हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, एक सिमिलर एलिलिक पेयर आता है, रिसेसिव एलिल, तभी आपका ब्लड ग्रुप ओ दिखाई देता है। तो एक तरह से इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर, जैसे ए जैसे बी, तभी ये कैरेक्टर अपना शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं G.J. Mendel is called father of genetics. जेनेटिक्स क्या है भाई, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
which deals with inheritance of the characters, genetical characters, deals with inheritance of genetical character, ये जेनेटिक्स को फाउंडेशन दिए, जेनेटिक्स पर फॉर्मुलेशन दिए, जेनेटिक्स पर थ्योरी दिए, लॉज दिए, जो कि आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक छोटा सा चर्च में ये कोर्ट यार्ड बनाए थे, ये फादर थे, और ये कहते चले कि ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ये मैथमेटिशियन थे, थोड़ा सा कोर्ट यार्ड में सॉइल को तैयार करते थे। कहा जाता है ना कि आखिर ये पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किए थे, आखिर ये पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किए थे। Why did Mendel select pea plant? क्यों सेलेक्ट किए थे, कारण क्या है। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने का कारण है कि बिकॉज ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें दोनों होता है, एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। मैचुरेशन टाइम इसका कम है, मैचुरेशन टाइम इसका कम है, लेस। ठीक, उसके बाद में कह सकते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ज़्यादा है, ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर। कंट्रास्टिंग पेयर है इसमें। इसको एक तरह से मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में कह सकते हैं ना कि इसको छोटा इट रिक्वायर्स क्या, स्मॉल एरिया, छोटे से जगह में भी हो सकता है। ठीक, पी का कह सकते हैं क्या कि पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सैटिवम। ठीक है ना। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दीज आर द कैरेक्टर्स बाय विच मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किए थे और 1 बाय 1 करके ऑब्जर्व किए थे। फिर 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किए, फिर 3 कैरेक्टर को देख करके ऑब्जर्व किए, और उसका एक फाइंडिंग देखते थे कि उसका पॉसिबिलिटी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। पहले के तुम लोग पढ़ा होगा लोअर क्लास में, वो करते क्या थे कि छोटा सा कोर्ट यार्ड था चर्च में, और कोर्ट यार्ड को सॉइल को टर्न ओवर कर देते थे। टर्न ओवर करके उसमें सीड को डाल दिए। सीड को डालने के बाद पहला एक तरह से देखे कि जैसे एज फॉर एग्जांपल हाइट को ही ले लिए, तो सीड को सिलेक्ट करके पहले क्रॉस पॉलिनेशन करा दिए। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के पहले एक तुम लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा इमैसिकुलेशन। ये क्या होता था कि ये जो स्टामेन है, किसी मान लो कि स्टामेन है, पिस्टिल है, दोनों है एक साथ है, तो एक को काट करके निकाल दिए, इसको रिमूव कर दिए एक प्लांट से, दूसरे प्लांट से स्टामेन को निकाल कर रिमूव कर दिए। इस तरह से अलग करके पन्नी से उसको ढक दिए। तो एक तरह से इमैसिकुलेशन और बैगिंग टेक्निक के अपना करके वो सीड में एक तरह से क्या कह सकते हैं कि अडॉप्ट किए, उसको फॉलो किए, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे। फिर उसको सीड को सेलेक्ट किए, सीड को चुने, फील्ड से पक गया फ्रूट्स, हो पकने के बाद फिर सॉइल को तैयार किए, फिर सीड को डाले, फिर उसको प्लांट को ग्रो होने दिए, और तब देखे कि उसमें क्या हो रहा है। तब उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते थे, फिर फ्रूट तैयार होता था, फिर सीड को सेलेक्ट करते थे, फिर सीड को डाल करके क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे, सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे। इस तरह से कैरेक्टर को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि उन्होंने 3 कैरेक्टर को प्रपोज किए।
तीन करेक्टर में कौन कौन तीन लॉज प्रपोज किए, जिसमें कि आपका दो ही लॉज ज़्यादा पढ़ना है। इसमें पहला लॉज था लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। दूसरा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट assortment। तो let us see law of dominant and recessive। लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। टॉल प्लांट, जैसे एज फॉर हाइट कैरेक्टर्स, टॉलनेस और दूसरा हो गया ड्वार्फनेस। टॉलनेस को मेल प्लांट मान लिए। क्या मान लिए? मेल प्लांट। ये अस्टामिन हो गया, ये अस्टामिन में पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है कि नहीं है? पॉलन ग्रेन। इसको जीनोटाइप जो हुआ एक तरह से प्योर लाइन का, इसको अगर सिमिलर एलेलिक पेयर का है तो इसको प्योर लाइन का ब्रीड कर लिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्योर लाइन का ब्रीड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर लाइन ब्रीड कहेंगे। और इसको भी प्योर लाइन ब्रीड। जैसे देखो इसके अपोजिट हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है तो इसके रिसेसिव हम स्मॉल लेटर से करेंगे। तो ये आपका ये भी प्योर लाइन ब्रीड हो गया, प्योर लाइन ब्रीड। इसको हम लोग प्योर लाइन ब्रीड। अब ये डिवाइड करेगा, गेमिट बनता है, गेमिट बनेगा, गेमिट फॉर्मेशन होगा तो ये टी हो जाएगा। सिंगल एलील आता है गेमिट फॉर्मेशन में, इसमें भी सिंगल एलील आएगा। क्या आएगा? सिंगल एलील। अब इसके बीच क्रॉस पोलिनेशन हुआ। क्या हुआ? क्रॉस पोलिनेशन। इमेसिकुलेशन वही टेक्निक की है कि टॉल प्लांट के स्टामिन से पॉलन ग्रेन निकाले और उसके स्टिग्मा पर, ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पर डस्टिंग कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका टी और टी ये एक हाइब्रिड बन गया। ये F1 जनरेशन का हुआ, ये F1 जनरेशन। इसको फर्स्ट जनरेशन भी हम लोग कह सकते हैं। सभी के सभी इस जनरेशन में टॉल प्लांट था। टॉल प्लांट, ऑल प्लांट्स आर टॉल। इस प्लांट में F1 जनरेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन कराए। तो अब इसको नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या कि क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद इसमें देखें कि आपका F1 जनरेशन का ये वही, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किए। इसको मेल प्लांट ले लिए, मेल प्लांट पॉलन ग्रेन और एक तरह से टॉल, और ये भी क्या हो गया? टॉल। ये भी टॉल था। ये फीमेल का पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, फीमेल गैमेट्स। इसमें दो तरह का गैमेट बना, टी और टी। इसमें भी दो तरह का गैमेट बना, टी और टी। इसको चेकर बोर्ड से सेल पॉलिनेशन होने दिए, सेल पॉलिनेशन होने दिए। सेल पॉलिनेशन से इसमें आपका बना क्या? यहाँ से देखो टी और यहाँ से क्या हो गया? टी। इस तरह से इसका पॉसिबल हम लोग देखते हैं क्या कि टी आ गया, इसमें टी, ये ऐसे किया जाता है, इसके साथ है, फिर इसके साथ। ठीक, आता क्या है? प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी में देखो इस तरह का आती है बात। ये हम उतारे तो इस तरह का बात आती है, 2टी और यहाँ पर टी। यानी कह सकते हैं क्या कि ये जो आपका 75% आएगा वो आपका टॉल प्लांट आएगा।
और 25% जो आएगा वो क्या आएगा, ड्वार्फ प्लांट आएगा। और ड्वार्फ प्लांट इसलिए फिनोटिपिक जो रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, वो 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा। और जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा, जीनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, 1:2:1 आएगा। 1:2:1, क्योंकि 50% इम्प्योर है, 25% प्योर है, इधर 25% प्योर है, तो ये 1 रेशियो निकालिएगा, 1:2:1 आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि F1 जनरेशन में कोई ड्वार्फ प्लांट दिखाई नहीं दिया। जैसे ही F2 जनरेशन हो गया, इसको मान लिया गया क्या, F2 जनरेशन। क्या मान लिया गया, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में ये अपने सिमिलर एलेलिक पेयर में आया, जिसके वजह से अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। तो कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि व्हेनेवर जीन रिसेसिव जीन रिमेन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट जीन मास्क द कैरेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द रिसेसिव जीन। व्हेनेवर recessive gene come in pair, similar allelic pair in F2 generation, it is able to express its character। यानी F2 जनरेशन में उनको दिखाई दिया प्लांट कि 75% टॉल प्लांट थे, 25% ड्वार्फ प्लांट थे। यानी F1 जनरेशन में उनको एक भी ड्वार्फ प्लांट दिखाई नहीं दिया था। तो इस चलते वो निष्कर्ष पर निकले कि जब डोमिनेंट जीन रहेगा तो रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और जैसे ही रिसेसिव जीन का कैरेक्टर एक्सप्रेस सिमिलर एलेलिक पेयर में आता है तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देता है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव था। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर ले लिया, टॉल जैसे टॉलनेस, टॉलनेस एंड दो कैरेक्टर ले लिए, हाइट, दो कैरेक्टर जैसे हाइट और शेप ऑफ सीट, शेप ऑफ सीट, दो कैरेक्टर इसमें ले लिया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर ले लिया गया, ठीक। इसमें टॉल एंड क्या हो जाएगा, राउंड सीट, टॉल एंड राउंड सीट। और इसमें ड्वार्फ एंड क्या,